So hello and welcome back to the channel. So in this series, I am discussing the PYQ from UGC NET, and I am also discussing the pattern behind the paper and how I am going to tackle the paper or the question, and I am also giving the advice regarding the paper. So if you have gone through all the videos, I have already discussed the PYQs from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. So we have almost completed 600 questions already, and I have already discussed almost 5 to 600 concept which is there. So I hope my advice, my concept clarification, my explanation part ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो जस्ट गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो, बिकॉज़ उसको पढ़ने के बाद आपको, क्योंकि नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। सो वी आर ओनली आई एम ओनली गिविंग much advice in the questions, because mostly the questions and the pattern is now repetitive. So if you have not watched the earlier video, please go and watch them so that this video become easy for you. With this, I will be taking the first question. So this is the very first question, which is there in the third part. Which of the following judgments are associated with legislative supremacy of Parliament in the UK? And the options are Jackson versus Attorney General, R versus Secretary of State for Transport. Option C is R versus Secretary of State for the Home Department. D is O'Reilly versus McMahon, and E is Rich versus Baldwin. So the answer to this question is even I don't know, है ना? क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग 600 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट थर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर के लास्ट ही सवाल होंगे। आखिरी के लगभग 30, 35, 40 सवाल हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि यूजीसी नेट जस्ट ट्राई टू जस्ट रेज द बार फॉर द हार्डनेस ऑफ द पेपर, है ना? थोड़ा पेपर को हार्ड बनाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए, तो इन्होंने थोड़े अजीब से क्वेश्चंस बनाए हैं। बट एट द सेम टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट जितना क्वेश्चन लंबा होगा, है ना, उतना उसको सॉल्व करना इजी होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हिंट्स, है ना? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये जितनी भी जजमेंट्स हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन देन दीज जजमेंट्स इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. So you just note down these judgments. So because this question is important, because of there are at least 5 judgments mentioned in this question. ठीक है, तो इससे लगभग 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन द कमिंग फ्यूचर दीज जजमेंट कैन बी आस्क्ड, है ना? तो जस्ट नोट डाउन दीज जजमेंट एंड वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यूजीसी ने थोड़ा ट्राई किया है, थोड़ा पेपर को टफ बनाया जाए। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया है। हर क्वेश्चन की जब हम देखेंगे, उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि यस, सम क्वेश्चंस आर लाइक दे आर वेरी हार्ड, एंड द एडवाइस आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट ऐसे क्वेश्चंस को, अगर इफ द एग्जाम इज नॉट हैविंग नेगेटिव मार्किंग, then only you have to attempt, and if the exam is having any kind of negative marking, then you don't need to attempt that question, you just need to avoid. So with this being said, I will be taking the next question. So okay, so this is the question from Muslim law, मुता मैरिज, और ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट बी गोइंग इन द डिटेल। और आई होप कि अभी तक आपको पता हो, मुता मैरिज इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी मैरिज which is only allowed under Shia law. Oh, sorry, yes, under Shia law, and it is a kind of contract marriage for a fixed period of time. तो सारे के सारे रिंचर्स मैंने बता भी दिए हैं और लिखे हुए भी है, तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is also very important question. Which of the following judicial decisions are related to environment impact assessment and environmental clearance? ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि environmental law में international conventions को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद आते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स विचार दिया, ठीक है, जैसे कि वेलोर सोसाइटी वाला केस हो, या फिर एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ हो, या फिर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो। तो मोस्टली लगभग 10-15 केसेस तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज दे आर गिवन इन द पीवाईक्यूज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, है ना? सो दिस इज ऑल्सो, और ये स्टीराइल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
क्योंकि ये मेंशन था और पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप इफ यू आर मेंटेनिंग योर रजिस्टर और नोटबुक फॉर टेकिंग द नोट्स देन यू ऑलरेडी हैव दिस केस। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट केस एंड ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड is an important case. So kindly note all these cases because these are important for your upcoming exam. So with this, we will be taking the next question. Okay, so this is an important question which can be very easily solved through the through legal reasoning and the tool of elimination. So I will be reading the question. Which of the following terms are defined under Information Technology Act 2000? Computer network, obviously it is defined. Information, it is also defined. So now we will check A and B. So A and B, okay, A and B is only given in option 2. So the answer is option 2. That is A, B, C, D. Online is not there, which it is not defined. Apart from this, ना ये तो मैंने एलिमिनेशन से कर लिया और मेरे को पता भी था, बट जैसे कि मैंने आपको एडवाइस दी है कि जो डेफिनेशन क्लॉज है माइनर एक्ट्स का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। And here you can see that straightforward question is asked from the definition clause only, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये definitions ही पूछी गई हैं और ये पूछा गया है कि ये कौन सी चीज डिफाइन है और कौन सी चीज डिफाइन नहीं है। तो आई होप कि मेरी सारी एडवाइस आपको दिख रहा है कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सटीक बैठती है, बिकॉज इट ऑल दी एडवाइजेस आर फ्रॉम वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एग्जाम्स। So just note these down and always go through the minor act and their definition clauses, and if any kind of commission or statutory body or which government is there, state government or central government, where it is mentioned the function. So always go through these things when it comes to the minor act. With this advice, I will be taking the next question. Okay, so this is a question from Muslim law. और एक एडवाइस जो मैंने आपको कई बार बोली है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना उतना ही इजी होगा। प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझना और उसकी बाउंड्री को अंडरस्टैंड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विद दिस एडवाइस आई विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन। Which of the following led to the setting aside of the practice of triple talaq as evident in the case of Shaira Bano versus Union of India 2017? ठीक है। सो नाउ अब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया। नाउ वी विल बी checking the options. Muslim Personal Law Application Act 1937 is not a law regarding triple talaq, and the practice is against the tenets of Holy Quran. Yes, this is there. So A is there, तो ऑप्शन 3 और 4 तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि अब हमें ए या बी देखना है या ए या सी देखना है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। Section 2 of the Shariat Application Act 1937 is a pre-constitutional legislation within the meaning of Article 13 of the Constitution एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। अब दूसरा सी भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन विद इन द मीनिंग ऑफ 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नो, इट इज वायलेटिव of Article 14 because it is arbitrary and discriminatory in nature against Muslim women, है ना। It does not deal with Article 15. It deals with Article 14. ठीक है, और we should be within the boundaries of the question. We should be limited with the boundary of the question. So the answer is B, है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन बराबर में भी लिख रखी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग सोचेंगे 15 भी हो सकता है, नो, 15 इज नॉट देयर, है ना। इसका जो क्लियर कट आंसर बनेगा, है ना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो आंसर बनेगा, दैट इज 14, है ना। So with this, I hope there is no confusion regarding this. So I will be taking the next question. So this is the question which is related to the directors of the company. कंपनी लॉ में डायरेक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, है ना। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि माइनर एक्ट में कोई भी चीज अगर फॉर्मेशन है या कोई भी इंपॉर्टेंट बॉडी है तो वो आपको पता होनी चाहिए, एंड डायरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन अ कंपनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंपनी, है ना। So independent director may be paid remuneration by way of, and the option is A, sitting fees, B, stock option, C, profit related commission approved by board members, and D, share in fixed asset of company.
and the answer to this is A and C. So there is nothing to explain. बहुत straightforward question है. Just go through the explanation part and note down. With this, we will be taking the next question. So this is an important question from international human rights or international law. Interesting, easy, very easy question. We will be reading the question. Which of the following is not part of the International Bill of Rights? So the first point which is to be noted is that the question is not. Which of the following are not the part of International Bill of Human Rights? And the first option is Magna Carta 2015. Yes, it is not the part. So यानी कि A तो we can cancel out the third option. So now we only have A first 1, 2 and 4. Second, we will read Universal Declaration of Human Rights 1948. Yes, of course, it is a part. And C, International Covenant on Civil and Political Rights. Yes. तो B और C किस में नहीं है? A में B है, दूसरे में भी C है. ठीक है, तो नाउ वी ओनली हैव B एंड C, है ना? तो हमारे पास बचे A और D. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989. यस, सो द आंसर इज A एंड D आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल राइट्स. सो थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप अपने क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, है ना? और इसमें अब ज्यादा कोई एडवाइस देने वाली बात तो नहीं थी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन. So with this, you can just note down the points from the explanation part. With this, I will be taking the next question. So this is the question from Negotiable Instrument Act, I think, and it is also given in the explanation part. तो बहुत ही straightforward question है और it is a question from legal and logical reasoning. It is a question from common sense. So I will be reading the question. Inland instrument means instrument drawn or made in India, true. Instrument made payable in India, true. Instrument drawn upon any person resident in India, true. Instrument that is passed by Indian Parliament. सो आई डोंट थिंक कि लॉजिकली ये बिल्कुल ही साउंड होगा, क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट इंस्ट्रूमेंट को पास करता है उसको हम बिल या एक्ट कहते हैं, लेजिस्लेशंस कहते हैं. वो इंस्ट्रूमेंट को पास करता है तो ये इट्स अ बिट डाउटफुल थिंग. तो इजीली इसका आंसर एबीसी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द आंसर. सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, another easy question, that is, which of the following offenses are against public tranquility as per the Indian Penal Code 1860? है ना? Counterfeiting of coin, public tranquility के against नहीं. Unlawful assembly is there B. तो B चार में नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक या दो या तीन में तो कोई ऑप्शन होगा. सेकंड, sedition. Sedition is not tranquility. तो we will see writing and affray. तो B, D, E and E. B, D and E, third option. Now ये तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया. द एडवाइस विच आई वांट टू गिव इज, यू ऑलरेडी नो दैट यू शुड नो द सेक्शन फ्रॉम बीएनएस where the offenses against public tranquility is now defined. कौन सा पार्ट है, कौन सा पोर्शन है. तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और आपको जाके ये करना है. और अगर आप बाकी सारी वीडियोस भी देखें तो अभी तक आपकी वो नोटबुक लगभग भर चुकी होगी, है ना? आई एम होपिंग दिस थिंग. सो और सिडिशन तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सिडिशन तो डज नॉट एग्जिस्ट इन बीएनएस. तो होप कि आपको ये सारी चीजें पता है और आपने बीएनएस के कुछ नोट्स बना लिए हैं. सो मेरी भी लगभग ये सीरीज अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ 2024. तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सम वीडियोज ऑन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, सो टू गाइड यू मोर. तो देखते हैं. सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is very, very interesting and important question, where different kind of principles of environmental law are mentioned. And the question is, according to Section 20 of the National Green Tribunal Act 2010, what are the principles that should be applied by the NGT while passing orders and decisions? है ना? तो हम ये सारे के सारे पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद इसका आंसर बहुत इजी है. मोस्टली हम पीवाईक्यूज में देख चुके हैं, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ में इसको और एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि अगर हम कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री वगैरह कोई चीज भी है, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो साथ ही साथ कुछ ऐसा काम भी करें जिससे उसको हम कॉम्पनसेट कर पाए, ताकि इस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सके.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमें कोई फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए 1000 पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम 1000 पेड़ कहीं और लगवाना भी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमने एक जगह से 1000 पेड़ काटे क्योंकि नीड थी उस जगह फैक्ट्री इंस्टॉल करने की, बट सेम एट द सेम टाइम वो 1000 पेड़ हमने जो काटे उसको कंपनसेट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम कहीं और 1000 पेड़ लगाए, है ना। डिफॉरेस्टेशन किया तो अफॉरेस्टेशन करें ताकि उसको हम बैलेंस कर सकें फॉर द कमिंग जनरेशंस। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि मान लो हमें किसी चीज की पूर्ण रूप से साइंटिफिक नहीं पता कि ये हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान कर रहा है, बट स्टिल प्रिकॉशंस कैन बी टेकन, प्रिवेंटिव एक्शंस कैन बी टेकन टू स्टॉप दैट हार्म। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को बैन करना, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि ये एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है जो कि हम ले रहे हैं। या फिर पेस्टिसाइड्स को बैन करना, अब किसी पेस्टिसाइड का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं भी हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि वो बात को रिसर्च होगी तो पता चलेगा, वो हो सकता है ना भी हो, बट फॉर द टाइम बीइंग एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उस चीज को हम रोक देते हैं, तो इसको ये दिस फॉल्स अंडर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, है ना। थर्ड इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फैक्ट्री इंस्टॉल करी, अब उससे जाहिर सी बात है पॉल्यूशन हो रहा है, तो जो पॉल्यूशन वो करेगा, फॉर एग्जांपल मान लो उसका जो भी गंदगी है, अगर वो किसी नदी में डाल रहा है, तो पहले तो वो उसको उस गंदगी को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाए, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, और उस प्लांट को लगाने का जो भी खर्चा होगा तो वो ही बंदा बेयर करेगा, क्योंकि गंदगी भी अल्टीमेटली वही बनाने वाला है, तो उसको साफ करके ट्रीट करने के लिए जो प्लांट इंस्टॉल करेगा वो भी वही बंदा लगाएगा, है ना, जिसने वो फैक्ट्री लगाई है। ठीक है, अगर उसके अलावा भी कोई स्पिल हो जाता है प्रिकॉशनरी उसने सारे चीजें मेजर्स कर ली, उसके बाद भी वो गंदगी किसी न किसी नदी में चली गई, तो उस नदी को साफ करने का जो खर्चा होगा तो वो भी वही बंदा उठाएगा, या वही फैक्ट्री उठाएगी जिसकी वो, या वही कंपनी उठाएगी जिसकी वो फैक्ट्री होगी, है ना। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन तीनों से अलग है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोलता है कि अगर आप कोई भी हजार्डस चीज अपनी फैक्ट्री में या किसी जगह पे एंगेज कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। किसी भी वजह से अगर वो एस्केप कर जाती है तो उस कंडीशन में वो कंपनी ही लायबिल होगी, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। आई होप ये चारों के चारों प्रिंसिपल आपको बहुत इजीली समझ में आ गए हैं, है ना। बट एनजीटी का जो सेक्शन 20 है उसमें वो वर्क करता है ओनली अकॉर्डिंग टू थ्री प्रिंसिपल, दैट इज ए बी एंड सी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसके वर्ड से मतलब एक तरीके से बाहर तो नहीं, बट एनजीटी की सेक्शन 20 इज नॉट डीलिंग विद दिस, है ना। हालांकि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज आल्सो फ्रॉम द एनवायरमेंटल लॉ, एंड बट बेसिकली इट इज फ्रॉम टॉट आल्सो, है ना। तो ये एनवायरमेंटल लॉ में भी यूज होता है, लेकिन ये बेसिकली टॉट का फीचर है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए बी एंड सी होंगे ओनली, ठीक है। सो क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली एनवायरमेंटल लॉ का प्रोविजन नहीं है। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज एन इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। The question is, the Constitution of India confers original and exclusive jurisdiction on the Supreme Court in cases where there is a dispute A between two or more states. This is true. Dispute arising out of a treaty entered into or executed before commencement of the Constitution. This is a question of advisory jurisdiction, so it does not fall in the original jurisdiction. B नहीं है, तो B यानी कि दो ही ऑप्शन बचे, CDE और ACD, तो A तो है ही, है ना। तो ए तो है ही, तो यानी कि इसका ऑप्शन 4 हो गया। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, ट्रू। बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, ट्रू। ई इज dispute arising out of substantial question of law, it is appellate jurisdiction under article 132, not the original jurisdiction. So with this, I hope you have noted down the explanation part, and I have made you understand this. So with this, I will be taking the next question. Another easy question from Motor Vehicle Act. So I will be reading the question. Which of the following is correct as per the Motor Vehicle Act 1988?
Option A, Section 140 of the Motor Vehicle Act 1988 deals with the principle of no fault liability, which is correct. B, United Indian Insurance Limited versus Karamchand deals with third parties, which is also correct. Doctrine of pay and cover is covered under Section 149 of the Motor Vehicle Act, which is also correct. As per Section 173 of the Motor Vehicle Act 1988, an appeal to High Court from the award of motor accident claim tribunal to be preferred within 60 days from the date of reward. No, this is not correct. है ना? So the answer is A, B and C only. Now यहाँ पर एक समझाने वाली चीज है, that is what is no fault liability. No fault liability उसको कहते हैं कि जब बिना किसी फॉल्ट के भी आपको कंपनसेशन देना कंपलसरी हो. इसको ऐसे समझाते हैं कि एक बंदा सड़क पर चल रहा था और वो ज्यादा वो थोड़ा नेग्लिजेंट ही था, ठीक से नहीं चल रहा था. अब एक कार आती है जो कि सारे रूल फॉलो कर रही थी, फिर भी किसी वजह से उसमें वो लग जाती है. तो और उस बंदे को, जो पैदल था, उसको चोट लग जाती है. तो अब ऐसा हो सकता है कि जो बंदा कार वाला था, उसने उसकी कोई गलती नहीं थी, नो फॉल्ट पे था, बट स्टिल अंडर सेक्शन 140 ही इज लाइबल टू कॉम्पनसेट. बट मोस्टली ये कॉम्पनसेशन जो होता है वो इंश्योरेंस के थ्रू होता है. मगर अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी, आपका कोई फॉल्ट नहीं भी है तो भी मोटर व्हीकल एक्ट में आप लाइबल होते हो. ठीक है, इसको हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी. और ये मोस्टली सेक्शन 148 में है कि जब आप नो फॉल्ट पे हो बट स्टिल आपने डेथ कॉज कर दी है या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट कॉज कर दिया है, तो यू आर लाइबल टू पे द कंपनसेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम योर साइड. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी. ये लाई गई थी बेसिकली, ठीक है, ताकि जो बंदा है जिसको चोट लगी है उसको जल्द से जल्द कंपनसेट कराया जा सके, है ना, और एविडेंस की जरूरत ना हो. क्योंकि अगर इसमें नो फॉल्ट लाइब अगर ये फॉल्ट लाइबिलिटी होगी तो फिर एविडेंस की जरूरत होगी, तो फिर एक प्रोसेस लंबा हो जाता है, फिर वो साबित करना होगा, फिर उसमें पूरा का पूरा उसमें पूरा एविडेंस एक्ट लगेगा. ठीक है, गवाह होंगे या सबूत होंगे या जो भी होंगे, तो कॉम्पनसेशन मिलना लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए इस चीज को कट शॉर्ट करने के लिए अब ये तो दिख रहा है कि उसकी डेथ हो गई या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया है, तो लाइबिलिटी तो उस पर जाएगी जाएगी. तो इसको फिक्स करने के लिए ये सेक्शन लाया गया था. सो विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, बट जैसे कि मैंने बताया, जितना क्वेश्चन लॉन्ग होगा उतना ही इजीली उसमें से आपको एविडेंस भी मिलते हैं, सो दैट यू कैन पॉइंट आउट द थिंग. तो हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. The first option is exercising supervision over the activities of the certifying authority. ये तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रीजनिंग ही समझ में आ रहा है कि ये तो होना ही चाहिए. तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो यानी कि ऑप्शन वन कैंसिल आउट हो गया. ए बी सी डी और ए बी सी, यानी कि ए बी सी तो है ही, तो ये तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तो हम डी और ई और चेक कर लेते हैं ना. समन एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी सब्सक्राइबर एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ. तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि मतलब किसी सब्सक्राइबर को समन करना और उसको एग्जामिन करना ओथ पे, ये एक सर्टिफाइंग कंट्रोलर के पास इतना टाइम होगा या फिर, तो मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा. तो डी नहीं होना चाहिए. तो अब डी नहीं होना चाहिए तो ई कंफर्म हो गया. फैसिलिटेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये हो सकता है. ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर मेरे को भी नहीं पता था, तो मैंने भी एक अंदाजा लगाया है. दो द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज देयर, बट अगर इफ आई एम गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन तो मैं इसको इस तरीके से टैकल करता और मैं चौथे ऑप्शन तक इस प्रकार से पहुंचता. सो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है कैसे आप क्वेश्चंस को देखकर, ऑप्शंस को देखकर, थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाकर कैसे सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, है ना. दिस इज ऑल्सो अ मेथड. क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर सही लगा सके थ्रू द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना. वरना अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको फिर स्ट्रेटेजी पूरी चेंज करनी पड़ती है, आप हार्ड क्वेश्चन कोई भी टैकल नहीं करेंगे, है ना, अनलेस एंड अनटिल आपका स्कोर बहुत कम नहीं जा रहा हो. बट हम उस चीज को अभी डिस्कस नहीं करते. सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हियर आर सम मैक्सिम्स गिवन. मैक्सिम्स पे आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो. और मैंने बताया कि इंटरनेशनल लॉ में, टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में, ऑलमोस्ट हर लॉ में हमें कोई ना कोई मैक्सिम मिल जाएगी, है ना. और खास करके इंटरनेशनल लॉ में, आईपीसी में, इन सब में मैक्सिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये सारी की सारी आपको मैक्सिम नोट कर लेनी है ना. अब
मेरे लिए तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए नहीं पता कितना इजी होगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपको मैक्सिम्स कितनी पता है। बट क्योंकि नेमो से, डेलिकेटो से, है ना, कुछ वर्ड मैंने ऐसे मेरे को पता है जिनसे मैं एक अंदाजा लगा के इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकता था। बट दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन, और आपको ये सारे के सारे मैक्सिम्स लिख लेनी है। आई हैव मेंशन एंड एक्सप्लेन ऑल दी मैक्सिम्स हियर, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is also an interesting question from the amendment procedure. तो amendment part इतना important होता है, और ये amendment से related question कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कई बार पूछे जा चुके हैं। लास्ट भी वाईक्यूज में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आई होप कि आपने इसमें नोट्स भी बना रखे हैं। तो अगर मैं होता तो कैसे सॉल्व करता है इसको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे को पता है आर्टिकल 5 है, क्योंकि वी हैव डिस्कस इन दी लास्ट पी वाईक्यूज। 2022 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो ए का 4 दो में ही है। बी का, इंडिया का 368, बी का 3। ओके, तो इसको फिर तुक्के से ही सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि इसके आगे का मेरे को भी नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इनकी कौन से सेक्शंस है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब आपको ये सारे के सारे नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो यू कैन इजीली आंसर। विद दिस बीइंग said, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम jurisprudence। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता। देखो, लॉ इज अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। मेरे को पता है जेरेमी फ्रैंक की, तो डी का 2 होगा। अब डी का 2 इसमें एक ही में दे रखा है, तो इसका आंसर 1 हो जाता। बट फॉर यू, एक एंड ईच एंड एवरी शुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को ये चारों के चारों लगभग पता है ना। जैसे कि एंड ऑफ लॉ शुड बी सेटिस्फाई अ मैक्सिमम वांट्स विद मिनिमम फ्रिक्शन, बैलेंसिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो ए का 3 होगा, है ना। और ओ डब्ल्यू होम्स, ओ डब्ल्यू होम्स रियलिस्ट स्कूल से हैं, है ना। तो ओ डब्ल्यू होम्स, लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस। तो ये रियलिस्ट स्कूल से हैं, तो ये तो खैर मेरे को पता ही है। तो ये ओलिवर होम्स की ये कोटेशन हो जाएगी। बाकी आपके लिए इज द थिंग इज दैट ओपन योर jurisprudence पार्ट एंड जस्ट नोट ऑल दिस डाउन, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग jurisprudence, बट स्टिल लगभग 700 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत सी तो आपको वैसे ही मिल पता ही होंगी, अभी तक समझ में आ ही गई होंगी, है ना। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर खोज के एक्सप्लेनेशन लिख दी है। ऑप्शन भी यूजीसी नेट ने जारी कर ही दिया है, तो आपका काम है। मेरे को नहीं पता, तो मेरा काम तो चल जाएगा, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी ऑलमोस्ट, है ना। तो मेरा तो काम चल चुका है, लेकिन आपके लिए ये है कि चारों के चारों इनको याद कर लो, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे की सारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स बन जाती हैं। तो जस्ट टेक द नोट्स, एक्सप्लेनेशन पार्ट में सारे हैं। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ऑल आर दीज द आर द लैंडमार्क जजमेंट्स, एंड आई होप कि आपने अपनी कॉपी में इनको लिख रखा है, क्योंकि ये कई बार डिस्कस हो चुकी है। रूरल लिटिगेशन, केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज फ्रॉम एनवायरमेंटल लॉ, डी का 2 एक ही में है, दैट इज ऑप्शन 2। तो ये इजीली इसके थ्रू भी हो सकता है, बट मेरे को बाकी सारी भी पता है। और सेली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। श्रीनिवास थिएटर वाली भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये सारी की सारी आपको पता हो, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द ओनली एडवाइस इज दैट यू शुड नो द प्रोविजन फ्रॉम द बीएनएस। ठीक है, और ये मैंने कैसे सॉल्व किया, मतलब ये तो खैर बहुत ही इजी है, इसके तो चार ही ऑप्शन मेरे को पता है, बट स्टिल, डेथ कॉज्ड बाय अ चाइल्ड ऑफ 6 years, ये तो बहुत इजी है। इन्फेंसी, नो ऑफेंस, है ना। तो ए का 3। अब ए का 3 2 में और 4 में है। दूसरा देख लेते हैं, डेथ विदाउट प्रीमेडिटेशन सडन फाइट, एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 है, तो बी का 1 एक ही में है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। बट आपको चारों पता होने चाहिए, प्लस आपको पता होने चाहिए बीएनएस के प्रोविजंस। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लॉ ऑफ थॉट, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज सेम क्वेश्चन इज अ रिपीट क्वेश्चन। इसमें से कुछ ऑप्शन सेम थे। हम वेगन माउंट को और रीपॉलिमिस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फोर्सिबिलिटी का जो रूल है वो वेगन माउंट में दिया है, और डायरेक्टनेस का रीपॉलिमिस में दिया है। और इन दोनों केसेस को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन मैंने किया है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था।
अब रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी तो फिर इजी है, और कंस्पायरेसी ऑफ नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ कंस्पायरेसी आपको इजीली टू और मोर पर्सन कंबाइन, है ना। और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी नेग्लिजेंस में हो गया, तो इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिपीट क्वेश्चन, पिछले साल की पीवाईक्यूज में से ये रिपीट है। हमको पता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है, तो सी का 2 हो जाएगा। अब सी का 2 तो है ए और 1 और 2 में, तो 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल आउट कर दो। पार्लियामेंट्री इंडिया और यूके में है, ठीक है, तो डी का 4 हो गया। अब डुअल फेडरलिज्म ये हमको पता है, क्योंकि मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी है, हमने क्या से क्या चीजें कहाँ से बोरो की हैं, है ना। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में डुअल फेडरलिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भूटान से हम अंदाजा इजीली लगा सकते हैं, बिकॉज भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो ये इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है, तो आई होप ये आप भी इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच इज वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू पीपल। ठीक है, तो ये चारों की चारों आपको चार क्वेश्चन के और चार चार क्वेश्चन मिल रहे हैं और चार आंसर मिल रहे हैं। तो ये आपको आईपीआर वाले पार्ट में नोट डाउन कर लेना है ना। और ये आपको पता होने चाहिए कौन सी किस में बिलोंग करती हैं, तो जस्ट गो एंड नोट इट डाउन, रिवाइज एंड रिमेंबर, क्योंकि आपके लिए ये एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आज मेरे लिए, मेरे को इसका आंसर नहीं पता, ये टफ क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ, बट अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू में आ गया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए, इसलिए आपको ये नोट्स में लिख लेना है। विद दिस बीइंग सेड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेल्स एक्ट 1930। अच्छा, इसमें वैसे तो खैर मेरे को सारे ऑप्शन पता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दैट इज कैवेट एम्प्टर, बायर बिहेवियर। ठीक है, आप यानी कि जागो ग्राहक जागो वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल कैवेट एम्प्टर, और सेक्शन 16 से ये डील करता है। ये बहुत इजी है, लेकिन ये मेरे को चारों पता है, और आपको भी आई होप कि चारों पता होने चाहिए। और माइनर एक्ट में अब आपने ये चारों के चारों नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। तो बी का 1 का मैं अंदाजा लगाता तो ऑप्शन 1 बनेगा इसका, तो मैं तो इसलिए इजीली इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन मेरे को फिर भी ये चारों भी पता थे, है ना। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, और विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is also very interesting, very easy and very important question which can be very easily solved by using your legal reasoning, है ना। देखो, जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, वो भी यही चेक करना चाहता है कि आपको एक थॉरो ओवरऑल दिमाग में लॉ पता है कि नहीं, है ना। तो देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार मैटर्स दे रखे हैं। अब एपलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर्स में होगी, तो डी का 1। अब उसको भी पता था कि ये इजी है, तो उसने भी डी का 1 लगा रखा है, तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, 3 बचे। फिर भी इजी हो गया ना क्वेश्चन, चार में से 3 ऑप्शन बचे हुए आपके पास। यूनियन लिस्ट, आप इसमें से सोचो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो कि यूनियन लिस्ट में फॉल करेगा। मैरिज एंड डाइवोर्स हमें नहीं पता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हमें नहीं पता, इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, क्या ये चीज स्टेट की लिस्ट में फॉल करेगी? नहीं। ये चीज एक ऐसी है जो कि आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो तो यूनियन ही बनाएगा ना। स्टेट के हाथ में तो पावर नहीं दे दी जाएगी, वरना वो तो फिर अपना अकॉर्डिंगली लॉ बना सकता है। तो सी का 4 होगा, तो सी का 4 3 में है, तो ये इजीली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन पता हो, दो ऑप्शन पता है और थोड़ा सा आप लॉजिकल दिमाग लगाकर लीगल नॉलेज जूरिस्प्रूडेंस को यूज करके भी आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे को ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन नहीं तो 3 ऑप्शन तो पता ही थे, ठीक है, बट अगर 3 ऑप्शन ना भी पता होते, 2 ऑप्शन भी पता होते जो कि बिल्कुल ही लीगल रीजनिंग के ऊपर खड़े हैं, तो उन किसको भी आप फिर सॉल्व कर सकते थे। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द केस लॉज ऑफ हिंदू लॉ, है ना। दास्ताने वर्सेस दास्तान डील्स विद क्रुएल्टी एट द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और इसमें सारे के सारे मैं आपको क्या बताऊं, आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द एक्सप्लेनेशन। तो जो लैंडमार्क जजमेंट्स होता है वो तो रिमेंबर करने वाली चीज है कि किस जजमेंट में क्या हेल्ड किया है ना। एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट। लेकिन आप इनमें से काफी सारे जजमेंट से ऑलरेडी अवगत हैं, क्योंकि दोज आर ऑलरेडी आस्क्ड इन द पीवाईक्यूज, और आई होप कि आपने उन सारी की एक लिस्ट बना रख के तैयार कर ली है, ठीक है, क्योंकि ये ही रिपीट मोड में चलते रहते हैं। विद दिस बीइंग सेड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सीधी सीधी पनिशमेंट पूछ ली है और इतनी डीप डाउन कोई भी नहीं पढ़ता है माइनर लॉस को। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको ये चारों के चारों नोट डाउन कर लेने हैं फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, है ना। और अगर इसके अलावा भी कोई और इम्पोर्टेंट लग रहा है इसके आसपास का, तो वो भी नोट डाउन कर लेना है। सो ओनली थिंग विच आई कैन गिव यू इन दिस क्वेश्चन इज एडवाइस। तो इसको गो थ्रू कर लो और वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी की सारी कमीशंस नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जो कमीशन नहीं दे रखी हैं आपको पता है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, वो तो मेंशन है यहाँ पर। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, फाइनेंस कमीशन और डिफरेंट कमीशन जो भी हैं, प्लानिंग कमीशन क्या है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो, है ना। और इनकी ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लो, इसकी एक सेपरेट लिस्ट बना लो, ताकि ये इजीली हो जाए, आप इजी हो जाए आपको रिवाइज करना। विद दिस एडवाइस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम आईपीआर। आई होप कि अभी तक तो आपने गो थ्रू करके ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। फिर भी हम एक बार बता देता हूँ। डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस किस में होगी? ये होगी ट्रेडमार्क में, क्योंकि ट्रेडमार्क का क्या काम होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी को डिस्टिंग करे, चेंज करे। जैसे कि कोका कोला से आप डिस्टिंक्टनेस कर पाए बिस्लरी में, है ना। तो ये मेन काम होता है ट्रेडमार्क का, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये कंपनी कोका कोला है और ये कंपनी पेप्सी है या बिस्लरी है या जो भी है ना। तो डिस्टिंक्टनेस बताने का काम होता है ट्रेडमार्क का। ओरिजिनलिटी होती है कॉपीराइट में, है ना। कॉपीराइट चेक करता है आपका वर्क कितना ओरिजिनल है, पेंटिंग है तो कितनी ओरिजिनल है, वीडियो है तो कितनी ओरिजिनल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पेटेंट में होती है। पेटेंट का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और क्वालिटी एंड रेपुटेशन ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बताते हैं, है ना, कि ये गुड्स कितनी रेप्यूटेड है और इसकी क्वालिटी क्या होगी। जैसे कि बासमती राइस, तो नाम से पता चल जाता है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना। तो ये इसकी क्वालिटी, इस चावल की क्वालिटी अलग होगी, किसी और चावल की क्वालिटी अलग होगी। तो आई होप मैंने चारों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अनदर वेरी 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 हार्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है, बट फॉर यू द सेम एडवाइस विल बी दियर। इन सबको नोट डाउन कर लो, फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट 4 सवाल बन रहे हैं, सो इसीलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड, I have given the explanation beside the question, so just go through and make the notes, and I will be moving on to the next question. Okay, now so there is the passage, है ना। इससे 5 सवाल पूछे गए हैं और पांचों के पांचों बहुत ही सरल सवाल पूछे गए हैं। तो आप एक बार इस पैसेज को गो थ्रू कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इस सवाल का जवाब देते हैं। दैट इन द श्री राम गैस लीक केस द चीफ जस्टिस वर मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड द आंसर इज सेफ्टी ऑफ द सिटीजंस। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन और भी हैं नेक्स्ट पेज पे। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यार बहुत ही इजी 5 सवाल, मतलब ऐसे पूछे हैं कि एग्जामिनर चाहता था कि आपको 5 मार्क्स दे दे। तो यहाँ पर 4 सवाल और दे रखे हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंशन को एक बार रीड कर करके आप, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चारों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई टफ चीज नहीं है। तो ये चारों के चारों के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और विद दिस ये हमारा 2024 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अभी तक हम 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 का पार्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, 700 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 400 से 500 से ऊपर ही कॉन्सेप्ट्स को हम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। पैटर्न अब हमें समझ में आ गया। अच्छा, आपने इस पेपर में देखा होगा कि 2024 आते आते जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है वो बढ़ाए गए हैं। क्यों? जस्ट टू इंक्रीज द टफनेस। लेकिन क्या वो असल में टफ क्वेश्चन थे? जब हम उनको एक ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं, उनके ऑप्शंस को देखते हैं, एलिमिनेशन का मेथड यूज करते हैं, तो वो क्या टफ है? टफ नहीं है, है ना। बस द थिंग इज दैट हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर रखे हैं, वो हमारे दिमाग में फिक्स हो चुके हैं। एंड रिमेंबर द की टू सक्सेस इज रिवीजन। जितना आपने रिवीजन कर रखा है, जितना वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सॉलिडिफाई हो चुका है, बैठ चुका है, आप बिल्कुल याद कर चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो ये सारे के सारे उतने ही आसान हो गए होंगे, है ना। तो विद दिस आई थिंक दिस पीवाईक्यू सीरीज विल बी एंडिंग। तो अब आगे का प्लान ये है कि आगे मैं मैगजीन पे या फिर सिलेबस पे या फिर और जो भी, जितना मैं इस पेपर को इजी बना सकता हूँ, ऑलमोस्ट मैंने ये 75 to 80% पेपर तो आपको इजी कर ही दिया है, इसका पैटर्न टैकल करने की चीजें बता के, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर इजी, तो मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा।
जिसमें मैं मैगज़ीन्स या फिर सिलेबस या इंटरनेशनल लॉ की जो चीज़ें मेरे को लगती हैं इम्पोर्टेंट एक जगह करनी। So I will be discussing that. With this, I will be taking leave. We will be meeting in the next video.